जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थॉट्स कॉर्नर बाय केपी। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्यार, आपके स्नेह और आपके सपोर्ट की वजह से थॉट्स कॉर्नर बाय केपी ने 1000+ व्यूज़ और 150+ सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया और धन्यवाद। और जैसे कि आप मेरे वीडियो देख के अपना टाइम दे रहे हो, तो आई विल मेक श्योर कि वो टाइम आपका वर्थ इट हो, राइट। और उससे ज़्यादा खुशी मेरे को इस चीज़ की है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स के फ़ोन आए, जिन्होंने बताया कि भाई उन्होंने भी ये चीज़ स्टार्ट करी है एंड इट मेक्स देम हैप्पी टू। तो दैट वाज द एक्चुअली द रियल इंटेंट बिहाइंड शेयरिंग दैट थॉट, क्योंकि उस चीज़ ने मेरे को हैप्पीनेस दी, तो मेरे को लगा कि ये छोटी सी चीज़ तो कोई भी कर सकता है और इससे चिड़ियाओं की लाइफ के अलावा हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है, राइट। और मेरे पहले वीडियो का भी इंटेंट एक्चुअली वही था कि हम कभी कभी ओवर थिंक करते हैं और 99% ऑफ द टाइम वो चीज़ नहीं होती है। तो वाई नॉट टू लिव इन प्रेजेंट एंड गिव आवर बेस्ट ऑन दैट ना। तो उसी चीज़ का एक्चुअली मेरे को रियल हैप्पीनेस थी कि लोगों ने वो चीज़ अपनाई और उनको अच्छी लगी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम फॉर दिस। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा हर ब्लॉग कुछ ऐसे ही इंटेंट के साथ हो जो वैल्यू एडिशन करे हमारी लाइफ में और बाकी क्रिएचर्स की लाइफ में, बाय वन वे और अदर, राइट। सो आई नो कि टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, राइट, और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो यू नो व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। पर to kick off the things, let us watch this video, and I am sure that you will get the goosebumps, and then we will start our third block. They've got 176 on the board. He goes again. Heinrich Clausen, flexing, they're penalty the global. Is this the day that the Weibo Nation finds a pot of gold at the end? It's almost not survivable now. Well, it's a yes, the break is dead. They lost the momentum, nicking a wide one, Clausen goes frustrated. India right again. Is there going to be another twist and the failure in this game? Is this the last throw of the dice for India? Jesper Plummer has to break this now. Oh, he's got him. He has done the job. He's broken through the big man, pins round and looks at the shed stilts. He leaves the pack in India. India are serious with this. One for 6 and everything. 20 from 12. He squeezes on. And it really happens at everything. 16 from 6. Wide. Not against it. In against. Premier left the thing. No, what a catch. Oh my God. What a bowling to see it. This is a minute 30 catch. It's quite an incredible moment, folks. One of the greatest catches in cricket history when you look at the occasion and the pressure. Edge. Down the boundary by 4. 12 from 4 now. Swings in the air. This should be picked. It's sweet target. India will feel they won this World Cup now. No one knows. They all know. The world of cricket knows. It is just moments away. It's in the air. It's India. We won the T20 World Cup after 17 years. The trot is over. आई एम श्योर कि आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट वापस आई होगी, वो एक्साइटमेंट, वो गूज बम्स वापस आए होंगे, राइट। सो इट वाज द इनक्रेडिबल मोमेंट जब पूरा देश हमारा खुशी से नाच रहा था, रोड में आ चुका था, बम पटाखे फोड़ रहे थे, और उस दिन आई गेस सब एक अच्छी नींद सोए होंगे ना। एंड दैट इज़ अ हैप्पीनेस आई गेस वी कैन नॉट डिफाइन इन द वर्ड्स ना। वो बस फील कर सकते हैं, वो बस फील कर सकते हैं। और एक्चुअली उस दिन मेरे को ये थॉट आया था कि स्पोर्ट इज़ नॉट जस्ट अ गेम, राइट। और एंड बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड ग्लोरी, स्पोर्ट्स ऑफर सो मच मोर. Nah, there are numerous benefit of playing sports. So my this vlog is all about that. But before that, let us watch one more video. At some point of time you have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve, but at the same time you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is, the hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out, but if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but it's a tough period that actually. So after listening from one of the best, let's come back to sports.
जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स शुड नॉट जस्ट बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट, बट इट शुड बी अ वे टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। अब बात यह है कि कौन से स्पोर्ट्स को हम चूज़ करें। एग्जैक्टली पॉइंट वो नहीं है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स की अपनी रेंज ऑफ फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बस अपने आप को इंगेज रखें 15 to 20 मिनट्स एवरी डे मिनिमम इन एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। और क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से वी आर नॉट जस्ट मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी, राइट। और पर सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे को स्पोर्ट्स क्यों पसंद आया, बिकॉज इट बिल्ड्स अ कैरेक्टर। इट बिल्ड्स अ कैरेक्टर विच विल मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में इजीली गिव अप नहीं करोगे ना। जैसे कि अभी आपने जो वीडियो देखी धोनी की, तो उसमें जो पॉइंट्स थे, दैट ऑल पॉइंट्स वर ऑल अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, और वो सिर्फ स्पोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दीज ऑल पॉइंट्स आर एप्लीकेबल इन आवर लाइफ। इस वीडियो के जरिए मैं बस यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अ गेम, इट इज़ मच 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 मोर देन दैट। इट इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आई विल पर्सनली ट्राई माई बेस्ट to inspire you to make a sport a part of your healthy lifestyle, and will wish that you start giving 20 to 30 minutes a day in any of the physical activity. Okay, so let us start with the physical benefits that we are having with the sports. ठीक है, there are multitude benefits of playing sports, keeping our physical fitness in place, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो है वो है आपका इट इम्प्रूव्स द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब क्या होता है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, करेक्ट। अब जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, एंड एज अवर ब्लड वेसल्स एक्सपेंड, तो उससे क्या होता है, इट अलाउ मोर ब्लड टू फ्लो। और जैसे ही मोर ब्लड हमारा फ्लो होने लगता है, उससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, एंड दैट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस और हार्ट स्ट्रोक। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न जब भी कोई हम स्पोर्ट्स करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप पहले क्या करो, थोड़ा सा वार्म अप करो, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अगर वो एकदम से ही बढ़ जाएगा, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच जिसकी वजह से इंजरी होती है, राइट, रिस्क बढ़ जाता है इंजरी का। दैट इज़ द रीज़न कि हमको बोला जाता है कि पहले थोड़ा वार्म अप करो, जिससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी बॉडी वार्म अप होने के बाद यू विल बी इन द स्टेज टू हैव दैट फिजिकल एक्टिविटी कीप गोइंग। जो दूसरा बेनिफिट है, इट हेल्प अस इन बेनिफिटिंग मसल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूविंग द एंड्योरेंस, राइट। जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर एक स्पोर्ट में हमारा जो डिफरेंट मसल ग्रुप है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। जैसे अगर मैं टेनिस की बात करूँ तो इट इज़ मोर अबाउट योर हैंड, राइट, क्योंकि मेरे को अपने जितने भी मेरे शॉट्स होते हैं इट विल बी डन थ्रू हैंड्स। एंड अगर मैं आपकी फ़ुटबॉल की बात करूँ सो द मोर वर्क दैट इज़ डन इज थ्रू द फुट। तो डिफरेंट मसल ग्रुप आपके यूज़ होते हैं, और जितने ज़्यादा वो मसल ग्रुप आपके यूज़ होते हैं उतने ही उनकी स्ट्रेंथ और ओवरऑल एंड्योरेंस इम्प्रूव होता है। पर अदर देन डैट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मेन है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। इट मेक्स अ पर्सन मोर फ्लेक्सिबल। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जितनी ज़्यादा मोर फिजिकल एक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा बैलेंस बढ़ेगा थ्रू मूवमेंट ऑफ बॉडी, राइट। बॉडी रिजिड नहीं रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर मैं बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो मेरे को याद आता है सूर्य कुमार यादव का पैच वर्ल्ड कप वाला, जैसे कि वीडियो अभी दिखाई थी। Wide, Malik gets it, in he gets, plenty of it, does he? No! What a hit! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. This is quite an incredible. तो लुक जस्ट इमेजिन कि बॉल देखना ही है, एट द सेम टाइम बाउंड्री का भी ध्यान दे रहे हैं कि पाँव बाउंड्री रोप में टच ना हो जाए या क्रॉस ना हो जाए,
एट द सेम टाइम ये भी ध्यान देना है कि अगर मैंने कैच पकड़ लिया और अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे को किस टाइम पे बॉल फेंकनी है और जंप मार के कैच पकड़नी है. सो all that happens in a fraction of seconds, and that is what physical activity, doing a regular physical activity or practice benefits a person. ना दिखने में वो जितना आसान था एक्चुअली उसके पीछे हर दिन की प्रैक्टिस है, घंटों घंटों की प्रैक्टिस है. तो द स्टडीज़ हैज शोन कि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रोनिक डिसीजेस सच एज हार्ट डिजीज एंड डिफरेंट कैंसर, राइट. तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स अभी तक जिसकी मैंने बात करी. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंटल बेनिफिट, राइट, जो कि वन ऑफ माय बेस्ट है ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट्स, जिससे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला है कि इट हैज़ अ ट्रेमेंडस पॉजिटिव इम्पैक्ट एज इट एक्ट एज अ आपका एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलीवर. क्योंकि हम जब भी कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा एक नेचुरल फील गुड केमिकल है बॉडी का जिसको हम बोलते हैं एंडोर्फिन, तो वो रिलीज़ होता है. तो जब एंडोर्फिन रिलीज़ होता है तो हल्के हल्के हमारा स्ट्रेस जो होता है या हमारी जो एंजाइटी होती है वो कम होती है एंड वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, राइट. और हम जो आते हैं हम हल्के हल्के रिलैक्स मोड में आते हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर. बट द फैक्टर दैट इंस्पायर और मोटिवेट मी द मोस्ट इज़ द कैरेक्टर बिल्डिंग, राइट. अब कैरेक्टर बिल्डिंग के मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना. तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की स्पीच सुनते होंगे या वीडियो देखते होंगे, सो दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, राइट. जैसे दे टॉक अबाउट ड्रीम्स. तो जब मैं ये वीडियो देख रहा था इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो वहाँ पे रोहित शर्मा जी एक चीज़ बोलते हैं कि मेरे को बस एक ही चीज़ दिखाई देता था, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप ना. तो इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. वहाँ पे बोला ना सब प्लेयरों ने कि मेरा सपना सपना सच हुआ, सपना सच हुआ, राइट. और वहाँ पे समझ में आ रहा था कि अगर वहाँ पे वर्ल्ड कप रख दे और एक अमाउंट ऑफ मनी रख दे तो वो वर्ल्ड कप ही चूज़ करते. और वो चीज़ हमें उनकी इमोशंस से दिख रही थी बिकॉज उसके लिए वो सालों साल प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट. और ऐसा टाइम भी आ रहा था जब 100% भी दे रहे थे पर हार जा रहे थे. तो इट वॉज़ अ ड्रीम, इट वॉज़ अ गोल फॉर देम, राइट. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग. फिर अगर मैं दूसरे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करूँ, जो एट्रीब्यूट होता है वो है आपका सेल्फ बिलीफ, राइट. अगर मैं हार्दिक पांड्या भाई की बात करूँ, ठीक है, तो पिछले जो 6 महीने उनके लिए गए, ठीक है, जहाँ के रहने वाले हैं, जिस देश के लिए खेल रहे हैं वही लोग गाली दे रहे थे, ठीक है. और पूरा स्टेडियम ऐसी गाली दे रहा था जो कि पब्लिकली आप बीप लगानी पड़ रही थी, right. But that guy believed on himself. He worked on the thing he need to work on, keeping everything aside, and he gave the best revenge to his haters. तो जो लोग उसको मुंबई इंडियन के टाइम पे आईपीएल के टाइम पे गाली दे रहे थे वही प्रे कर रहे थे कि भाई बचा लो, भाई बचा लो, भाई बचा लो, राइट. पर ये सब हुआ पॉसिबल सेल्फ बिलीफ की वजह से. विराट कोहली, हर एक क्रिकेटर, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में ऐसे टाइम पीरियड से गुजरता है जब जहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि यार मेरे 100% देने की वजह के बाद भी वाई आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट ना. तो वहाँ पे जो चीज़ काम करती है वो सेल्फ बिलीफ कि आई जस्ट नीड टू बिलीव ऑन वर्क, बिलीव ऑन माई सेल्फ. I just need to keep doing certain work and one day or the other it will make sense, right. तीसरा अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूँ तो इट इज़ लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ना. कि मैं अगर हार रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ है जो मेरे को इम्प्रूव करनी है, सो आई नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग. फोर्थ इज़ गिविंग 100% ऑन द ग्राउंड, राइट. जब एक प्लेयर खेल रहा होता है तो स्टेडियम पूरा हल्ला कर रहा होता है,
ठीक है, एटमॉस्फेयर ही अलग होता है, बट फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स में होता है, वहाँ पे होता है। ठीक है, कौन ऑडियंस से क्या बोल रही है, कौन प्लेयर क्या बोल रहा है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ गेम पे फोकस करना है और वहाँ पे 100% देना है, राइट। थर्ड इज़ नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर जैसे फिर से मैं वर्ल्ड कप का एग्जांपल देता हूँ, तो जब 5वां ओवर था तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी आई गेस 20% तक चली गई होगी ना, पर गिव अप नहीं करा। डिसिप्लिन, एवरीवन इज़ हैविंग द चॉइस। ठीक है, तो विराट कोहली की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि नो मैटर व्हाट, मैं 4:30 AM ग्राउंड में पहुंच जाता था हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आई मेक श्योर कि आई टेक द करेक्ट डाइट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई बॉडी ना। तो दिस इज़ द डिसिप्लिन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी द नंबर वन, राइट, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और मैं विराट कोहली का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर एवरी स्पोर्ट्स पर्सन in his field is disciplined and is committed to his sport, to his process of winning in the same way. Also, it also helps us in being a good learner. ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो एट्रीब्यूट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स का कोई भी नंबर 1 प्लेयर हो, हर एक प्लेयर का एक कोच होता है, राइट। और being humble to listen to coach is something which helps them in growing. So ये स्पोर्ट्स सिखाता है कि we should always be a good learner, because learning हर तरह से आ सकती है। एक छोटा बच्चा भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है लाइफ के बारे में। But it was still a kid with a dream and a belief in himself. I feel I still have room to improve. I still set goals for myself to strive for. I'm never complacent with what I've achieved. We have money, we have everything, we have fame. But the most important thing is the family. Keep your family healthy, good, and take care of your family, because this is the most important thing in the world. Failing to prepare was preparing to fail. The night before a game, I eat the same food. I went to bed at the same time. I got up, I ate the same breakfast. Some people call it superstition, but it's a routine. I went on the courts with just a ball and a racket and a hope. Because you might be actually not feeling great physically or mentally, you're drained, but the confidence somehow gets you through. And when you don't have confidence, that's then when you have to sort of trust all the hard work you've done, and you have to keep on working hard so success comes back. I make mistakes, but I strive every day to be a perfectionist. Set yourself a definite goal and work hard toward that goal, and don't let anything or anyone stop you in the process, no matter what it is. I didn't really care about the standings or the perception of my style or whatever, as long as I could keep learning these new tricks. And so as I was successful in competition and winning a lot of the events, my job was just to keep getting better. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. People perform better when there's no safety net. People perform better in sports and everything else if you don't have a plan B. We were down 1-0, and if you walked into our locker room at halftime, you thought we were up 3-0. Nothing external can defeat the internal. The only thing that can take someone down or break you down is internal. Nothing external is strong enough. You just never give up, because you never know what can happen. You never know who you can inspire and who you can influence. I'm not going to go out and say I'm the greatest this or that. I was a kid with a dream. That's it. You have to fail in order to climb that ladder. You are fighting the greatest fight of all times. And I fought because I knew it was not going to be a losing fight. It couldn't be a losing fight. As long as you believe in what you're doing and you're doing things you love to do, then you can go out there and be the best at it. And that's that should give you a lot of enjoyment and fulfillment in your life. Always keep an open mind that there's something out there for each and every one of you. And it's up to you to go out there and find your niche. You learn just to stick with it. I mean, there's lots of days where you don't really feel like doing it, or you don't feel like grinding it out, and you got to do it. Those are the highs and lows of being an athlete, and if you want to feel those highs, you got to go through those lows every now and then. There's time when you run and you just want to stop. You just want to give up, like the hell with this. I just want to go home. There's a day when you get up and you know what, you have a training today. You know it's going to be intense, and you're like, oh God, I don't want to go today, but you got to go.
When you play sports and you're committed to something, the commitment, the responsibility of showing up to practice on time, to being there for your teammates, to listening to your coaches, it's a responsibility that you have when you're playing with a group, that you have to hold your end of the bargain. When you have to make a punt, you make a punt. You have to hit the shot, you hit the shot. You just sort of like drop into another zone and you block out everything. Sometimes the will can outdo the skill. And sometimes a fella's will is stronger than the man who's actually better physically, and the determination and weakens the other man just to see him so determined. I still feel I have a lot to prove, not just as a player, but as a person, as a father. When I get to a point where I feel I can improve as a player, I walk away from the game. I am the greatest. Hard fucking work. You put it in, you believe in it, you will succeed. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you become better at your craft. Some of the best athletes, the greatest athletes in the world, do things when they're uncomfortable. You just have to stay calm because it's not finished to the last point, no matter how close you get. I've been working so hard all my life to be here, and I was determined to get this. You gotta start from way down the bottom. You gotta let it grow up with you. And if you're successful and you try hard enough, you're bound to come out on top. Just like these boys have come to the top now. Mentally, we have a vision, we have a finish that we have to attain, and sometimes you have to do it when you're old and you're tired, and I think it's the test of your will. ग्रेट। तो आई होप आपने काफ़ी इंस्पिरेशन ली होगी कोट्स को सुन के, राइट, बिकॉज दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर बिल्डिंग जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी की वजह से दे आर वेयर दे आर नाउ। तो अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, जो है सोशल बेनिफिट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या मैं बात करूं जब भी मैं स्पोर्ट्स खेलने जाता था तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलता। आज के टाइम पे भी इवन आफ्टर लाइक अ डिकेड और सो हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, राइट। तो ये सोशल कनेक्शन बना है स्पोर्ट्स की वजह से। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि व्हेन वी आर प्लेइंग एनी ऑफ द स्पोर्ट, जैसे मैं अभी अपने क्रिकेट की बात करूँ, मैं जो स्कूल में खेलता था ना, तो जब मैं स्कूल में खेलता था तो क्रिकेट के एक एम ने जो कि था कि हमको मैच जीतना है, उसने हम सबको एक जगह पे अलाइन करा हुआ था ना। हर स्पोर्ट्स पर हर पर्सन का क्या होता है, अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, पर व्हेन इट कम्स टू अ गेम, व्हेन इट कम्स टू अ कॉमन गोल, तो वहाँ पे सब अपना कंट्रीब्यूशन 100% देते हैं। तो इट ब्रिंग अस गुड सेंस ऑफ कि मैं टीम वर्क कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि टीम वर्क में मैं नहीं होता, टीम वर्क में हम होता है। तो वहाँ पे अपने आप को एक स्टेप पीछे रखना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक स्टेप पीछे रखना और टीम को आगे रखना, दैट इज़ व्हाट स्पोर्ट्स टीचेस, राइट। ऑल्सो टीम वर्क में हर एक चीज़ सुननी पड़ती है, राइट, बिकॉज इसमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे ग्रो होती है कि मेरे को पता है कि मेरे को मेरे कौन से प्लेयर को कैसे यूज़ करना है ना, उसको कौन सा राइट टाइम है उसको यूज़ करने का, राइट, उसको कैसे मोटिवेट करना है अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन कर जा रही है, राइट, और कहाँ पे ब्रेक देने की ज़रूरत है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू आर प्लेइंग ए स्पोर्ट्स ना। दूसरा, जैसे मैंने सोशल कनेक्शन की बात करी, तो सोशल कनेक्शन तो बहुत इजीली बन जाते हैं। मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, और इवन जो जिस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते थे उस टाइम पे जिनसे लड़ाई होती थी ना, मान लो जैसे मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, अगर दूसरे स्कूल से हमने मैच खेला है और फिर हो जाता था, हिट ऑफ द मोमेंट में होती थी, लड़ाई भी होती थी ना, पर मैच होने के बाद सब बराबर हो जाता था। और आज के टाइम पे जब हम मिलते हैं तो वही चीज़ किया है, लड़ाई भी थी, याद है, वो चीज़ को सोच के हमको हंसी आती है कि यार वो भी क्या दिन थे, आज सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, बट स्टिल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है आपका, जब हम सब मिलके एक गोल की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, वो चीज़ हेल्प करता है लाइफ में, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट, इट ऑल्सो हेल्प टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन ना।
it also help in improving our communication, right? कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सही टाइम पे सही चीज़ बोलना, ताकि सामने वाला बंदा समझे कि किस टाइम पे क्या चीज़ बोलने की ज़रूरत है, और उतना ही बोलना जितनी ज़रूरत है। ये चीज़ भी स्पोर्ट्स सिखाती है। बीइंग एन ऑडियंस हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, बट बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन और बीइंग अ लीडर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरे को अपने हर एक वर्ड्स को वैल्यूबल रखना पड़ेगा, हर एक वर्ड्स की आपकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना। तो ये सब एक सोशल बेनिफिट भी है जो स्पोर्ट्स से सीखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं अपने चौथे इम्पोर्टेंट बेनिफिट की, जो है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे पास मेन दो ही चीज़ें, राइट, एक है रिजाइलेंस, एक है परसिवियरेंस। और परसिवियरेंस अगर मैं बात करूं तो एक कंटिन्यूस एफर्ट to achieve or do something regardless of different obstacles that come in between। तो मेरे पास मल्टीपल चैलेंज आ रहे हैं, राइट। ऋषभ पंत भाई का एग्जांपल लो, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर। क्योंकि जो भी डिफ़िकल्टी आई, जो भी ऑब्स्टेकल आया, सबको साइड में रखा, बस एक चीज़ पे काम करा, अपने पे ना। तो ये बोलने के लिए तो शायद बहुत इजी चीज़ है, बट इट इज़ समथिंग जो करने में समझ में आती है कि इमोशंस को कहाँ पे कंट्रोल करना और कितना कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि इमोशनल आपका जो इमोशंस है वो ही आपके डिसीजन में भी हेल्प करता है। तो इमोशन कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। Also not forget कि sports teach us so much about the lessons we learn from losing, right? Sports teach us resilience, like how to handle disappointment and how to bounce back stronger। तो जैसे कि आपने देखा कि sports offer so much more than just an entertainment। Now it helps us in improving our physical health, it helps us in boosting our mental health, और it teaches us very much valuable life lessons, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, regardless of any of the sports you take part with। And trust me, your body and mind will thank you, even your soul will thank you if you will get engaged in any of the physical activity। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि स्पोर्ट्स हमको एक डिफरेंट पर्सन बना सकता है, राइट। अब बात यह है कि हम उसको 100% ले, उसका फुल बेनिफिट ले, उसको एज अ पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए, और उसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ना रखे कि बस ठीक घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, बैडमिंटन देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, व्हाटसएवर स्पोर्ट्स यू आर लाइकिंग ना, तो उसको खेले भी। So thank you so much for tuning into Thoughts Corner by KP, and also share your thoughts and views ki how sports have positively impacted your life. Please comment below, and until next time, stay active, be positive, and keep shining, and please start giving 15 to 30 minutes a day of your daily routine in any of the physical activity which you love to do। Thank you। Jai Hind।